آئیں میرے ساتھ نکالیں مقدس لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 4 باب اور 18 آیت. کا روح مجھ پر ہے اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسا کیا. اس نے مجھے بھیجا ہے کہ قیدیوں کی رہائی اور اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤ, کچھ رحموں کو آزاد کرو. خدا اس کلام کے وسیلہ سے ہم سبوں کو برکت دے. آمین. آمین. میں نے آپ کو بتایا کہ خدا یسوع مسیح نے کہا جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ ملے, الہی شخص تمہارے ساتھ نہ ہو, روح القدس تمہارے ساتھ نہ ہو, کیا کرنا؟ کیا کرنا؟ لیکن ہمارے خدا یسوع مسیح کی میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ یہ خوبصورتی, ہر ایک چیز کو پہلے اس نے خود کیا اور پھر کہا ایسے کرو. آمین. لکھا ہے خداوند کا روح مجھ پر جب تک روح القدس سے بھر کیا کرنا. یسوع کہہ رہا ہے خداوند کا روح مجھ پر ہے, خداوند کا روح مجھ پر ہے, اس لیے میں خوشخبری سنانے کے لیے نکلا ہوں. خداوند کا روح مجھ پر اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے کیا کیا؟ مسا کیا. اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسا کیا, اس نے مجھے بھیجا. ان باتوں میں غور کریں. پہلے روح کا ہونا ضروری, نمبر 1 پوائنٹ نوٹ کریں اس کے اندر, روح کا ہونا ضروری, مسا کیا ہوا من بلایا ہوا ہونا ضروری, پھر بھیجا ہوا ہونا ضروری. سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ یسوع نے اپنے شاگردوں کو کیا کیا تھا؟ بھیجا تھا. جاؤ میں تمہیں بھیجتا ہوں. خدا جسے بلاتا ہے, خدا جسے چنتا ہے, خدا پھر اسے خدمت دیتا ہے اور پھر اسے بھیجتا ہے, پھر اسے بھیجتا. اس لیے یسوع نے کہا مجھے بھیجا گیا, مجھے آسمان سے, عالم والا سے باپ نے مجھے بھیجا ہے کہ جا کر کیا کروں؟ غریبوں کو خوشخبری سناؤں, نا امیدوں کو یہ امید دلاؤں, بھٹکے ہوئوں کو, گناہوں میں دھسے ہوئے لوگوں کو, نا امید لوگوں کو امید دلاؤں کہ تمہارا بچانے والا, تمہارا چھڑانے والا, تمہیں آسمان پر لے کر جانے والا, تمہاری زندگیوں کو محفوظ کرنے والا اور تمہارا کفارہ دینے والا, تمہیں گناہوں سے نجات دینے والا آ گیا ہے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. اب تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت ہے, اب تمہیں نا امید ہونے کی ضرورت ہے. اب تمہارا چھڑانے والا, اب تمہارا بچانے والا, اب تمہارا فدیہ دینے والا, اور مجھے مسا کیا گیا ہے, مجھے بھیجا گیا ہے اس کام کے لیے کہ جا کر انجیل کی منادی کروں. آمین, آمین. اس لیے اس نے کہا مجھے بھیجا کہ قیدیوں کو اور اندھوں کو بنائی پانے کی خبر سناؤں. کیا تہاڈا اندھا پن دور ہو گیا؟ ہم تسی عقل دے مارے نہیں رہو گے, لیکن ضرورت اس چیز کی کہ اپنے آپ کو خالی کریں اور مسیح پر ایمان. آمین, آمین. اس لیے میں اس کو شارٹ کروں پھر آگے جائیں تاکہ اگلے پوائنٹ تک ہم پہنچیں. کچلے ہووں کو کیا کروں جی؟ آزاد کروں. کچلے ہووں کو کیا کروں؟ آزاد کروں. اور خداوند کے سال مقبول 19 آیت میں لکھا ہے اور خداوند کے سال مقبول کی کیا کروں جی؟ منادی. سال مقبول کا مطلب کہ پہلے والے شریعت کے دور, ضمیری دور, پہلے کے دور سے نکال کر اب نئے سال کا فضل کا آغاز ہونے والا ہے. کون سا آغاز ہونے والا ہے؟ فضل کا آغاز کرنے کے لیے میں آیا ہوں. اب تم پر فضل ہو گیا ہے, اب تم پر فضل ہو گیا ہے. آؤ اس فضل کے پاس, آؤ میرے پاس, میں تمہیں ہمیشہ کی زندگی دینا چاہتا ہوں. ہمیشہ کی زندگی میرے پاس ہے. کوئی بھی یسوع مسیح کے بغیر ہمیشہ کی زندگی دے. یہ یسوع نے کیا سنائی تھی؟ خوشخبری سنائی. کیا سنائی؟ پھر فرشتوں نے خوشخبری سنائی. دوسرا پوائنٹ, کس نے خبری سنائی؟ فرشتوں نے. اس کے لیے نکالے میرے ساتھ لوکا ہی کی دوسرا باب اور اس کی 10ویں آیت.
इसी के पीछे लूका दूसरा बाब और उसकी 10वीं आयत। मगर फरिश्तों ने मगर फरिश्ते ने उनसे कहा, मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, सुने जी, मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, डरो मत। क्या करो? डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता। हालेलुया, हालेलुया। फरिश्ते ने ये गवाही दी है जी, फरिश्ता ये गवाही दे रहा है कि डरो मत, परेशान मत हो, घबराओ मत, मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूं। मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत, खुशी की खबर देता हूं, जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, जो सारी दुनिया के वास्ते होगी। मैं तुम्हारे लिए खुशखबरी लेकर आया हूं, मैं तुम्हारे लिए खुशी का पैगाम लेकर आया हूं। तुम्हारे लिए इस शहर में एक मुनज्जी पैदा होगा जो तुम्हें गुनाहों से छुड़ाएगा, जो तुम्हें हमेशा की जिंदगी देगा, जो तुम्हारे दुखों को दूर कर देगा, जो तुम्हारी आंखों के सारे आंसू क्या करेगा? सारे कहीं आमीन, सारे कहीं आमीन। और तुम्हारे और फिर रात ना होगी और वो चिराग और सूरज की रोशनी के मोहताज ना होंगे, क्योंकि खुदा उनको आप रोशन करेगा और वो अब्दुल्लाबाद क्या करेगा? बादशाही करेगा। वो भी बादशाही कभी खत्म है, बादशाही खत्म हो जानी है थोड़े टाइम में, लेकिन उसकी बादशाही कभी खत्म ना होगी। देखा, मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी। जो किसके वास्ते होगी जी? यीशु मसीह यूहन्ना अज़दबागी कहते हैं, देखो ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया के गुनाह उठा लेगा। हमें कैसा मेहरबान है, दुनिया के गुनाह उठा लेगा। लेकिन आगे यूहन्ना रसूल कहते हैं, बात पूरी समझ आनी चाहिए इसलिए मैं समझा देता हूँ। यूहन्ना अज़दबागी कहते हैं, देखो ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया के गुनाह उठा ले जाता है। अस ये बेच खुश नहीं होना कि साढ़े गुनाह उठा लेगा, नो कि फाइन, बिल्कुल उठा लीजिए। लेकिन यूहन्ना रसूल आगे की बात करते हैं, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया, बात समझने की, लेकिन जितने उस पर ईमान लाए, जितनों ने उसे कबूल किया, उनको उसने खुदा के फर्जंद बनने का, बोलो ना, उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक आपके पास है, क्योंकि आपने मसीह पर ईमान लाया, आपने उसे अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लिया है, कि उसने हमारे गुनाहों के लिए क्या दी है? कफ़ारा दिया है, जान दिया। आमीन, आमीन। तो इसलिए फरिश्ता कह रहा है, मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ। ये छोटी खुशी की गल नहीं है, इसलिए फरिश्ता भी कह रहा है बड़ी खुशी, बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी। क्या आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए क्या पैदा होगा? एक मुनज्जी पैदा हुआ है। आमीन, आमीन। और उसका तुम्हारे ये निशान है कि तुम एक बच्ची को कपड़े में लिपटा हुआ चरनी में पड़ा हुआ आओगे, और यकायक उस फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर की एक गिरोह खुदा की हमद करती हुई और ये कहती हुई जाहिर हुई, आलमे बाला पर खुदावन की आमीन, आमीन। आलमे बाला पर भी जब एक शख्स तौबा करता है तो आलमे बाला पर फरिश्ते क्या करते हैं? खुशी मनाते हैं, क्योंकि खुदा खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने उसने इसलिए अपने बेटे को भेजा है जी। आमीन, आमीन। तो फरिश्तों ने ये क्या दी जी? खुशखबरी दी। आगे वाला पॉइंट के बाद खुशखबरी को मानना, खुशखबरी को मरकस की अंजील निकालो, उसका पहला बात, खुशखबरी को ते जेड़े नहीं मनणगे फिर अगे जाके सिखांगे उन्होंने की हाल है। मरकस उसका पहला बाप और 15 है, अब से सुनिएगा। और कहा,
कि वक्त पूरा हो गया है और कहा कि वक्त पूरा हो गया है और खुदा की बादशाही और खुदा की बादशाही नजदीक आ गई है। क्या आ गई है? आसमान से यसू बादशाह को लेके ਤੁਹਾਡੇ दरमियान आ गया। आमीन। क्या क्या खूबसूरत, वो बादशाह ही चुप के थले ले आया। वो कितना प्यार किया हमें छुड़ाने के लिए, और इब्लीस के घर में आकर इब्लीस को कुचला, उसकी बादशाही में आके उसको कुचला, उसके घर में आके उसको मारा और कहा इब्लीस ऐ मौत तेरा डंग। आमीन आमीन जी। तौबा करो और अगला काम मसा की करना है। क्या करो? तौबा करो और खुशखबरी पर ईमान और खुशखबरी पर ईमान लाओ। आमीन। तौबा करो और इस खुशखबरी पर ईमान ले आओ कि मसीह मेरे और आपके गुनाहों के लिए सलीब पर हुआ, मर गया, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठने वालों में पलौठा ठहरा। आमीन आमीन। और जिसने मौत पर, इब्लीस पर और हर तरह की कमी कमजोरियों पर क्या पाई है? आमीन। उस साडा यसू जिंदा साडे नाल नाल, जिन्ने मरे सारे कब्रां दे विच, लेकिन यसू जिंदा साडे नाल नाल। आमीन आमीन। जेड़ा आसमान तो आया वही आसमान पे गया, वही फिर वापस आएगा और फिर वापस लेके जाएगा। क्या खूबसूरत वादे हैं। आमीन आमीन। कैसे वादे किए यसू? आओ बताइए। सो लिखा है अगर और कहा कि वक्त पूरा हो गया है, वक्त तो ना पूरा हो गया और खुदा की बादशाही नजदीक आ गई। पहला दूर सी, गुनाह के बाइस क्या थी जी? हम खुदा को देख, आदम पहले खुदा दे नाल की करता सी ठंडे वक्तां च 1 to 1 गल करता सी, 1 to 1। ते जदों गुनाह कर लिया शैतान दे आया और कोल हवा कोल कहंदा तुसीं ये गल क्यों नहीं खांदे? ते ना 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 खुदा ने हमें क्या किया है? क्यों मना किया है? जिस दिन तुमने खाया तुम कर देना, नहीं नहीं, जिस दिन तुम खाओगे बल्कि तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदा की मानंद बन जाओगे। फल खा लिया, खुदा आया सुबह सुबह गल करो, आदम 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 तू किधर है? कहते खुदा मैं तुझे तेरी आवाज सुनी और मैं छुप गया। कहते छुपने की वजह, कहते क्योंकि मैं नंगा हूँ। पहले उसे पता नहीं था कि मैं नंगा हूँ, लेकिन गुनाह के बाइस वो नंगा हो गया। गुनाह इस इंसान को नंगा करता है और वो किसी काम का नहीं छोड़ता, वो खुदा की हजूरी से दूर कर देता है। वो खुदा की हजूरी से दूर कर देता है। पहले खुदा से बातें करता, लेकिन गुनाह के बाइस खुदा और इंसान की दूरी कर देता। बागेदन कितों का देता? बागेदन से मुराद खुदा ने अपनी हजूरी से गुनाह के बाइस क्या कर दिया? निकाल दिया। क्योंकि खुदा पाक है और बदी दे नाल रहिंदा। पहला ठंडे वक्त की गल्लां करता सी ना बहन जूली, जैसे मैं आपसे कर रहा हूँ ऐसे ही करता। ये गुनाह के बाइस फिर नो 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 नो, फिर अंदर मैं नंगा हूँ। तो गुनाह क्या करता है? नंगा करता है, बेइज्जत कराता है, किसी काम का नहीं छोड़ता, किसी काम का नहीं छोड़ता। वक्ती तो हमें पता लगता है, वक्ती तो वो हवा और आदम खुश थे, वो साड़ी अखा खुल गई बढ़िया, हाँ कमाल हो। लेकिन खुदा से खौफ आता है, खुदा से डर आता है, फिर हम उसका सामना कर नहीं सकते। तो इसलिए कहा वक्त पूरा हो गया है। वक्त क्या हो गया जी? इस गैप का वक्त जो गुनाह के बाइस हुआ था खुदा और इंसान के, अब वो वक्त पूरा हो गया। अब वो दूरी नहीं रहेगी मसीह पर ईमान लाने के बाइस। वो दूरी मसीह ने अपने खून से पूरी कर दी है जी। अब क्या हो गया है? वक्त पूरा हो गया है। वक्त क्या हो गया है? पूरा हो गया है और खुदा की बादशाही नजदीक आ गई है। जिथे गुनाह होया उथे ही आके कुफारा देता। यह है जुर्रतमंद खुदा की कुदरत। जिस
धरती पर गुनाह हुआ, उसी धरती पर आकर उसने उसे कुचला और कहा, ऐ मौत तेरा डंग। पहला आदम शिकस्त खा गया, पहला आदम, लेकिन दूसरे आदम ने इब्लीस को फतह याब होकर कुचला और उसे कहा, ऐ मौत तेरा डंग। आमीन, आमीन। तो इसलिए लिखा है और कहा वक्त पूरा हो गया, खुदा की बादशाही नजदीक आ गई है, हुन तौबा करो, अपने गुनाहों का इकरार करो, मुझ पर ईमान लाओ और खुशखबरी को मानो और हमेशा की जिंदगी को पाओ और खुदा से 1 to 1 फिर दोबारा बात करो। आमीन, आमीन। गल समझ आ रही? कोई मुश्किल तो नहीं, सीधी सीधी मैंने सीधी गल्लां होंदियां ने, सीधी कहानी। आमीन। वक्त क्या हो गया जी? मुश्किल का वक्त, नाउमीदी का वक्त खत्म हुआ। आमीन। अब वक्त आ गया है कि तौबा करें और खुशखबरी पर ईमान लाएं। खुशखबरी पर क्या लाएं? ईमान लाएं और हमेशा की जिंदगी को हासिल करें और हमेशा आसमान पर यीशु के नाल रहना। आमीन। क्या खूबसूरत होगा। फिर वो लाजर को क्या कहता है? एक पानी का उंगली का सिरा दबो कर मैनू पानी दे दे। फिर बड़िया दरखास्त करता है, इत्थे ते बड़ा अजाब है, मैनू इजाजत दे मैं अपने भैन भरावां नूं जाके दसां इत्थे की हाल हुंदा। कहंदा वहां मेरे नबी हैं, वहां मेरे खादम हैं, उनकी नहीं सुनते, अगर कोई मुर्दे चों जी उठेगा तो उसके भी नहीं सुनेंगे। जेड़े इब्लीस दे शिकंजे में है ना, वो अपने आप को बड़ा होशियार समझ उन्होंने खादम समझाने की कोशिश कर, वो अगों समझाते हैं। वो आंदे तुसी एडे नेक पाक, असीं तुहाडे नालों नेक पाक, तुहानू की पता नेकी हुंदी की? अरे भाई, इस वास्ते यीशु ने क्या अब्राहम ने उससे कहा कि इसमें से उठकर मुर्दे में से को अगर यहाँ से जाएगा ना तो वो इतने सख्त हैं, इब्लीस के इतने जुंगल में फंसे हुए हैं, उन पर ये तुम्हारी बातें असर नहीं। और ये हुआ, यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। सुनने आज भी ऐसी गल, आज भी गुमराह, आज भी ऐसी अपनी मस्तियों में पड़े हुए हैं, खुदा को धोखा दे रहे हैं, इंसानों को भी धोखा दे रहे हैं। और दुख की बात, इसलिए लिखा वक्त पूरा हो गया है। वक्त क्या हो गया जी? और खुदा की अजय तक भी वो गुनाह हम साथ साथ लिए फिर रहे हैं, अभी तक भी वो गुनाह हम साथ साथ लिए फिर रहे हैं। अगर यीशु साथ नहीं, रुक तो साथ नहीं, तो गुनाह साथ ही है ना भाई। तो इसलिए लिखा है और कहा वक्त पूरा हो गया है और खुदा की बादशाही कितने आ गई है। वो अजय भी दूर ही समझते, वो अजय भी समझ रहे खुदा मैं नंगा ही अजय भी गुनाहों में पड़े हुए हैं, अभी भी मिस्र के अंदर फंसे हुए हैं, अभी भी गुलामी में फंसे हुए। इन रस्मों से बाहर ही नहीं निकलते, इन रस्मों से बाहर नहीं निकलते। रस्में हमें नहीं छोड़ती, रस्मों के अंदर हम जकड़े हुए हैं। मसीह ने हमें सारी रस्मों से आजाद कर। अरे जहाँ यीशु का खून लग जाए तो वहां जब बदरू नहीं ठहर सकती तो फिर नजर लग गई इनू धागे बनो, यदि ससनी कढ़ाओ, इनू करनी की मतलब छगन करते हैं, वो खपाओ छोड़ दे। मेडिकल इसको कुछ नहीं समझता, मेडिकल इस पे मेडिकल बिलीव नहीं करता, हम तो फिर ईमानदार है। हम कौन है? ईमानदार है। योनास दबागी ने भी सच्ची बात कहते कहते अपनी जान तो दे दी, लेकिन सच्ची बात से वो पीछे नहीं हटा। आमीन, आमीन। तो ये जो पैसे हैं, ये जो फेंकना है, ये नुमाइश है, ये खुदा की बेहुरमती है, ये अय्याशी के जुमरे में आता है। ये किसके जुमरे में आता है? अय्याशी के जुमरे में आता है। बेहुरमती है ये, और ये बेहुरमती हम राज के कर रहे हैं। और फिर कहते हैं हम खुदा के लोग हैं, फिर कहते हैं हम खुदा के साथ चलते हैं, फिर कहते हैं हम खादम हैं, फिर कहते हैं हमें कलाम का बड़ा पता है। कुछ पता नहीं तुम्हें, खाली है रूह से, दुनियावी चीजें अभी तुम्हारे अंदर चल रही हैं। इस जिस्म पर अभी तुम्हें गलबा नहीं मिला है, तुम ख्वाहिशों में गिरे हुए हो। इस जिस्म से तुम बाहर नहीं निकले अभी। जब इस जिस्म से बाहर निकल जाएंगे तो सारी चीजें तुम्हें बेकार लगेंगी, सिर्फ यीशु नजर आएगा। आमीन। सिर्फ यीशु नजर आएगा। इससे मैं एक रिलेटेड स्टोरी करता हूं।
एक मिशनरी था चाइना का, तो वो ट्रेन में सफर कर रहा था ते उत्ते बरदे रात हो गई थी, सौ गया आराम नाल ते थल्ले कुत्ते ने बदमाश डाकू शराब पियो नशे में धुल, कहते यार चलो लूडो खेलते हैं, नशे में थे। बोला 4 लोग खेलेंगे ना जरा बड़ा मजा आए, कहते चौथा कितों ले आइए। अब देखो उत्ते एक सुता है यार, इन उठाओ, उन उठाते ने भाई उठो, वो नींद में कह रहा भाई मुझे सोने दे प्लीज, तंग ना करो। कह रहे यार उठो तुम, नशे में थे, उठो तुम, जबरदस्ती पकड़ के थोड़ा सा होश में आया। कहते करना क्या भाई, क्या हुआ? कह रहे लूडो खेलनी है। कहते मेरे हाथ नहीं। क्या कहता है? मेरे हाथ। देखा बोला वो हाथ थे आने आंदा हाथ नहीं। देखा वो ना देखो भाई सारे तीनों बैठने लगे, हाथ तो है इसके, लेकिन कहता है मेरे हाथ नहीं। कहते शायद नशे में है, अभी शायद उठा नहीं, मुंह पे थोड़ा पानी शानी मारा, होश दिलाया, फिर कहता है मेरे हाथ नहीं। फिर क्या कहता है मेरे हाथ नहीं। तो कहते हैं ये जो है ये किसके हैं? कहता है ये मेरे नहीं, मेरे यीशु के हाथ है। सुनिएगा बात को समझिएगा। कहता है ये मेरे हाथ नहीं, ये यीशु के हाथ हैं। इन हाथों से मैं ये काम ऐसा नहीं कर सकता कि मैं शराब पीऊं, मैं लूडो खेलूं, मैं पैसे फेंकूं, मैं अय्याशी करूं। इन हाथों को मैं यीशु के हाथों में दे चुका हूं। इनसे मैं वो काम करूंगा जिससे मेरे यीशु को जला दे। ये है मिशनरी, ये है वो लोग जिनके अंदर मसीह आ जाता है, फिर वो अपनी जिस्म की ख्वाहिशों पर गलबा पाते हैं। बाहर निकली दुनिया बड़ी ना, तुमने मसीह को बेच दिया है। ऐसे लोग मसीह को क्या करते हैं? बेच देते हैं। कोई पैसों के लिए बेच रहा है, कोई अपने बदन की ख्वाहिशों के लिए बेच रहा है, कोई अय्याशी के लिए बेच रहा है, किसी ना किसी तरह हम मसीह को बेच रहे हैं। वो साडा काम हो जाए खैर है यार। वो किसी ने कहिए ना यार देखो वो तो शख्स अच्छा शख्स नहीं, वो तो इस अकीदे पर ईमान नहीं रखता। तो बाइबल कहती है जो तसलीस पर ईमान नहीं रखता उन्होंने बहना उठना ज़रा ठीक नहीं। वो यार खैर और दुनिया च काम भी तो करना तो बन मसीह छड़ दो दुनिया च काम। बाइबल तो कहती है 1 दफ़ा समझाएं, 2 दफ़ा समझाएं, 3 दफ़ा समझाएं, अगर कोई नहीं समझता तो उसे छोड़। ये बाइबल की तालीम है। गैर कौमों वाला सलूक करो। यस, बल्कि उनके साथ गैर कौमों वाला। बाइबल कहती है तुम मुनकर हो और तुम फिर उन जैसे ही हो, तुम भी उन जैसे ही हो, उन्हीं के शरीक। आमीन। बात समझ आ रही? तो इसलिए लिखा है वक्त की हो गया, उन छाड़ दो भाई, वक्त पूरा हो गया ना, जो बाहर निकल आए इन रस्मों और रिवाजों से, अब मसीह को पहचाने। और इसलिए मैं कहता हूँ रूह कुदस का होना जरूरी। रूह कुदस इस बदन पर बदन की ख्वाहिशों पर आपको गलबा देगा। इसलिए यीशु ने कहा जब तक रूह कुदस तुम पर नाज़िल ना हो, जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिल जाए, ठहरे रहना। जब तुम पर रूह कुदस नाज़िल होगा तो तुम इस जिस्म की ख्वाहिशों पर गलबा पाओगे, मसीह को बयान कर पाओगे, मसीह की शान के मुताबिक उसकी बंदगी कर पाओगे। अदरवाइज तुम मसीह को बेच डालोगे, बेच दोगे उसी को अपने चंद रुपयों के लिए, पैसों के लिए। कितने दिनार में यीशु को बेच दिया था? आज भी लोग बेच रहे हैं। 30 दिनार में उसने यीशु का सौदा कर दिया। कितने दिनार में? 30 दिनार में बेच दिया उसने यीशु को। 30 दिनार के अंदर अपने मालिक का सौदा कर दिया, रास्तबाज शख्स का सौदा कर दिया, खुदा के बेटे का सौदा कर रहा है। देखें किस तरह इब्लीस ने उसकी मत मार दिया, किस तरह उसकी अकल को खुदा शैतान ने बंद कर दे के वो खुदा की हजूरी शुरू हो गया है। इब्लीस खराब करता है घरों को, इब्लीस खराब करता है नौजवानों को, इब्लीस दरारें डालता है मियाँ बीवी के अंदर, इब्लीस ना इत्तेफाकी पैदा करता है। अगर रूह कुदस होगा तो वो मोहब्बत का पैगाम देगा, वो जोड़ता है, वो तोड़ता नहीं है। ये है खुदा की खूबी। वो खानदान बनाता है, कोई रसोई पहन के वो मिलाता है, नहीं तो कई कहते चलो आगे लगी रवे चंगा है, तो थोड़ा तमाशा भी तो देखिए। आमीन आमीन। इसलिए रूह कुदस का होना, रूह कुदस से भरना जरूरी है। एग्री?